मैं डॉक्टर अशोक कुमार गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, एमएससी कॉलेज भरतपुर। ये वीडियो एमएससी थर्ड सेम मैथमेटिक्स के पेपर फर्स्ट फंक्शनल एनालिसिस पेपर कोड एमसी 301 के लिए है। वी हैव डिस्कस्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम known as Hahn-Banach theorem. Its major implication is that any normed linear space is rich in supply of functionals. The theorem asserts that any functional defined on a linear subspace of a normed linear space can be extended linearly and continuously to the whole space, which whole space while the extension preserves norm. The proof is complicated, so we start with a lemma which help to isolate its difficult part. Now we discuss important consequences of Hahn-Banach theorem. Theorem 1. Let n be a normed linear space and x0 is a non-zero vector in n. x0 is a non-zero vector in n, then there exists a functional f0 in n star. n star means conjugate space. f0 in n star का मतलब यह है कि f is bounded or continuous linear transformation from n to r or c, such that f0 x0 equal to norm x0 and norm f0 equal to 1. In particular, if x not equal to y, x by belongs to n, then there exists an f0 belongs to n star such that f0 x is not equal to f0 y. So हमारी जो हार्मोनिक थ्योरम थी जो हमने प्रूव की थी, f be a functional defined on M, then f can be extended to a functional f0. उसको हम ध्यान में रखते हुए यहाँ हम क्या कर रहे हैं, let m equal to alpha x0 be the linear subspace of M, क्योंकि हमने जैसे शुरुआत में कहा कि हम जो हमने हार्मोनिक थ्योरम की है उसका हम एप्लीकेशन पार्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हार्मोनिक थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं कुछ उसके। तो यहाँ पर उसी के पैरेलल लाइंस पे हम चल रहे हैं कि हमने एक m बी द लीनियर सबस्पेस ऑफ n लिया है स्पेंड बाई x0, डिफाइन f ऑन m बाई f अल्फा x0 इक्वल टू अल्फा नॉर्म x0. We claim that f is functional on m such that f x0 equal to norm x0 and norm f equal to 1. यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो हमारा जो टारगेट है f0 x0 इक्वल टू नॉर्म x0 एंड नॉर्म f0 इक्वल टू 1. अगर हमने ऐसा किया तो ये हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट है, हार्मोनिक थ्योरम, जिसको हम यूज में लेना चाह रहे हैं कि if f be a functional defined on M. तो हमने अभी m को हमने सब स्पेस लिया है n का, हमने f को डिफाइन किया है. अगर हम f को फंक्शनल प्रूव कर देते हैं m के ऊपर और साथ में हम ये बातें भी प्रूव कर देते हैं तो अकॉर्डिंग टू हार्मोनिक थ्योरम f can be extended to functional f0 defined on the whole space n such that norm f equal to norm f0 equal to 1. So जो हमको चाहिए norm f0 equal to 1 वो हमारा इससे आ जाएगा. And by definition of extension f x0 equal to f0 x0 equal to norm x0, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया f x0 equal to norm x0, by definition of extension ये बात प्रूव हो जाए. So our target is f to prove f is a functional on M. तो f को फंक्शन प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना है कि f should be continuous or bounded, नंबर 1, और f is linear. So सबसे पहले तो to show that f is functional we have to prove that f is linear
एंड बाउंडेड। एफ इज लीनियर, लीनियरिटी के लिए मैंने कई बार आपको बताया हुआ है कि एफ ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू अल्फा एफ एक्स प्लस बीटा एफ वाई, ये प्रूव करना होता है। एफ हमने किसके ऊपर लिया है, डिफाइन किया है, एफ को हमने एम के ऊपर डिफाइन किया है। सो लेट बाई वन बाई टू बिलोंग्स टू एम implies by 1 equal to alpha x naught and by 2 equal to beta x naught for some scalars alpha and beta. If gamma delta are any scalars, then f of gamma by 1 plus delta by 2. by 1 किसके बराबर है, alpha x naught, by 2 किसके बराबर है, beta x naught. So this is f of gamma alpha plus delta beta x naught. और according to definition, f of alpha x naught equal to अल्फा नॉर्म एक्स नॉट। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गामा अल्फा प्लस डेल्टा बीटा नॉर्म एक्स नॉट। दिस इज स्केलर्स, दिस इज स्केलर। सो हम इसको ब्रेकआउट कर सकते हैं हम, गामा अल्फा नॉर्म एक्स नॉट प्लस डेल्टा बीटा नॉर्म एक्स नॉट। और दिस इज गामा एफ अल्फा एक्स नॉट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एफ, एंड डेल्टा एफ बीटा एक्स नॉट एंड गामा एफ वाई वन plus delta f by 2. So f is linear. Again f is bounded. Let y equal to alpha x naught belongs to M, so that norm y equal to norm alpha x naught equal to modulus alpha norm x naught. Alpha scalar by definition of norm हम ऐसा कह सकते हैं। Now fy equal to norm f modulus fy equal to modulus f अल्फा एक्स नॉट, क्योंकि बाई इक्वल टू क्या है, अल्फा एक्स नॉट, और एफ अल्फा एक्स नॉट को हम लिख सकते हैं अल्फा एफ एक्स, क्योंकि हमारा एफ क्या है, लीनियर है। तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ अल्फा एक्स नॉट इक्वल टू अल्फा एफ एक्स नॉट। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस इज मॉडुलस अल्फा, और इसको f of alpha x naught alpha f of alpha x naught, right, f of alpha x naught हमने ऊपर लिया है f of alpha x naught equal to alpha norm x naught. प्लीज डिलीट दिस लाइन को आप डिलीट कर दें जो मैंने लिखी है, मॉडुलस अल्फा एफ एक्स नॉट, सीधा इसके बजाय आप यहाँ पर ये लाइन लिखें, और क्योंकि एफ अल्फा एक्स नॉट इक्वल टू है आपका अल्फा नॉर्म एक्स नॉट, अल्फा नॉर्म एक्स नॉट, ये एफ एक्स नॉट के स्थान पर आप सीधे सीधे लिखें नॉर्म एक्स नॉट, अल्फा एफ एक्स नॉट के स्थान पर लिखें आप नॉर्म एक्स नॉट, अल्फा नॉर्म एक्स नॉट, और दिस इज मॉडुलस अल्फा एंड नॉर्म एक्स नॉट, और दिस इज इक्वल टू नॉर्म बाई, हमने ऊपर बताया आपको अभी, नॉर्म बाई इक्वल टू दिस और लेस देन मॉडुलस बाई। नंबर्स के केस में नॉर्म बाई इक्वल टू मॉडुलस बाई, एंड हेयर बाई नॉट बिलोंग्स टू आर, बाई आर का मेंबर नहीं है, बाई एम का मेंबर है, सो नॉर्म बाई लेस देन बाई मॉडुलस बाई। हेंस f is bounded, it follows that f is functional on f. Further, norm f equal to supremum modulus fy, where y belongs to m and norm y less than equal to 1, और चूंकि हमारा मॉडुलस एफ वाई इक्वल टू, अभी हमने कहा कि दिस इज नॉर्म वाई, और नॉर्म बाई लेस देन इक्वल टू 1 और सुप्रीमम ऑफ दिस इक्वल टू 1। तो आपने देखा कि हमने ये नॉर्म एफ इक्वल टू 1 प्रूव कर दिया है, और ऑल्सो यदि हम अल्फा इक्वल टू 1 अगर लें तो एफ एक्स नॉट इक्वल टू नॉर्म एक्स नॉट। हेंस बाई हार्मोनिक थ्योरम द फंक्शनल एफ कैन बी एक्सटेंडेड टू ए फंक्शनल एफ नॉट सच दैट नॉर्म एफ इक्वल टू नॉर्म एफ नॉट। नाउ एफ नॉट एक्स नॉट इक्वल टू एफ एक्स नॉट इक्वल टू नॉर्म एक्स नॉट, अभी हमने ये प्रूव किया ही है बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सटेंशन। अभी हमने नॉर्म एफ इक्वल टू 1 प्रूव किया है, तो नॉर्म एफ नॉट इक्वल टू नॉर्म एफ अकॉर्डिंग टू हार्मोनिक थ्योरम, सो दिस इज इक्वल टू 1 बाय इक्वेशन 1। इन पर्टिकुलर व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू वाई, सो एक्स माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0।
then as above there exists a functional f naught in n star such that f naught x minus y, x naught के स्थान पे क्या आ गया x माइनस वाई इक्वल टू नॉर्म x माइनस वाई, और नॉर्म x माइनस वाई चूंकि x y के बराबर नहीं है और नॉर्म तो इसलिए ये नॉट इक्वल टू 0। और जब इसको हम चूंकि f नॉट हमारा लीनियर है तो हम कह सकते हैं दिस इज f नॉट x माइनस f नॉट y not equal to 0, so f naught x not equal to f naught y. Our next theorem, इसका स्टेटमेंट बहुत काम आता है, let n be a real normed linear space and suppose fx equal to 0 for all f belongs to n star, show that x equal to 0. Suppose हमने माना कि x 0 के बराबर है, तो जो अभी हमने थ्योरम प्रूव की है उसमें हमारा क्या था x नॉट नॉट इक्वल टू 0, उसको हम यूज में लें। थ्योरम का स्टेटमेंट आपके सामने है, पुनः है n बी ए नॉर्म लीनियर स्पेस, ये दिया हुआ है x नॉट नॉट इक्वल टू 0। यहाँ हम क्या करें x नॉट इक्वल टू, देन देयर एग्जिस्ट ए फंक्शनल f नॉट बिलोंग्स टू n स्टार सच दैट f नॉट x नॉट इक्वल टू नॉर्म x नॉट एंड नॉर्म f नॉट इक्वल टू। तो इसको यदि यूज करते हैं तो देयर एग्जिस्ट f बिलोंग्स टू n स्टार सच दैट fx इक्वल टू नॉर्म x ग्रेटर देन 0। fx ग्रेटर देन 0 जबकि हमको fx 0 दिया हुआ है, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस b मस्ट हैव x इक्वल टू 0। आवर नेक्स्ट थ्योरम, let M be a closed linear subspace of a normed linear space n and x naught is a vector not in M, then there exists a functional f naught in n star conjugate space such that f naught M equal to 0 and f naught x naught not equal to 0. M हमें क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस दिया हुआ है n का और x नॉट इज ए वेक्टर नॉट इन M, दिस इज गिवन। एक नेचुरल मैपिंग डिफाइन करते हैं t n से n बाई m में, यदि x n का मेंबर है तो बाई डेफिनेशन ऑफ क्वोशंट स्पेस हम n बाई m का एलिमेंट x प्लस m ले सकते हैं, तो tx इक्वल टू x प्लस m। आप चाहें तो इस मैपिंग को वेल डिफाइंड भी प्रूव कर सकते हैं। वेल डिफाइंड के लिए क्या करें, वेल डिफाइंड भी आप इस मैपिंग को प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। T is linear, let x by be any two elements of n and alpha beta any scalars, then T of alpha x plus beta y equal to alpha x plus beta y plus m by definition। और क्वोशंट स्पेस आपको वैसे बताया हुआ है कि हमारा ये क्वोशंट स्पेस इटसेल्फ ए वेक्टर स्पेस होता है विद रेस्पेक्ट टू लीनियर ऑपरेशंस। लीनियर ऑपरेशंस आपके सामने है कि x प्लस वाई प्लस एम इक्वल टू x प्लस एम प्लस वाई प्लस एम एंड अल्फा x प्लस एम इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स प्लस एम। दीज आर लीनियर ऑपरेशंस जिनकी वजह से हमारा ये n बाई एम जो क्वोशंट स्पेस है ये एक लीनियर स्पेस, एक वेक्टर स्पेस होता है, उनको हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो अल्फा एक्स प्लस एम प्लस बीटा वाई प्लस एम और दिस इज अल्फा एक्स प्लस एम प्लस बीटा वाई प्लस एम इक्वल टू अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई। कहने का मतलब दिस टी इज लीनियर। नाउ टी इज कंटिन्यूस। आपने थ्योरम पुनः वो एक थ्योरम आपने प्रूव की थी और उसमें यही कंडीशन शुरुआत में काम में ली थी, और उधर आपने प्रूव किया था कि n बाई एम नॉर्म लीनियर स्पेस, क्वोशंट स्पेस नॉर्म लीनियर स्पेस है with respect to norm defined in this norm x plus m equal to infimum norm small x plus small m for m belongs to m। आपको थ्योरम बताई हुई है, ये इससे पहले थ्योरम हमने प्रूव की है, आप देख सकते हैं उस थ्योरम को। तो इसका यहाँ पर यूज होना है तो नॉर्म टी एक्स इक्वल टू नॉर्म एक्स प्लस एम, दिस इज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एंड चूंकि दिस n बाई एम इज नॉर्म लीनियर स्पेस सो अंडर द नॉर्म x प्लस एम इक्वल टू दिस, सो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं नॉर्म x प्लस एम इक्वल टू दिस, क्योंकि x प्लस एम इज मेंबर ऑफ n बाई एम।
right? Or this m belongs to capital M. Infimum of this is less than equal to this. Norm x plus m लेस देन इक्वल टू दिस। तो अब हमारा ये नॉर्म टी एक्स हमारा लेस देन इक्वल टू नॉर्म स्मॉल एक्स प्लस स्मॉल एम हमारा हो गया। और यदि m जीरो के बराबर है, स्मॉल m यदि हमने जीरो ले लिया, तो नॉर्म टी एक्स लेस देन इक्वल टू नॉर्म x। दिस इज इक्वल टू 1 डॉट नॉर्म x। तो हम इसके बिहाफ पर हम कह सकते हैं, और चूंकि m जीरो क्यों लिया है हमने, क्योंकि हमारा m सब स्पेस है n का, इसलिए हम जीरो m में होगा, इसलिए हम जीरो ले सकते हैं m, क्योंकि ये जो हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारी सॉरी इनइक्वलिटी है, ये हमारी प्रत्येक m बिलोंग्स टू m के लिए ट्रू है। सो वी कैन टेक स्मॉल m इक्वल टू जीरो। तो इट फॉलोज दैट t इज बाउंडेड बाई बाउंड 1, जो कि यहाँ पर नॉर्म टी एक्स लेस देन इक्वल टू 1 नॉर्म एक्स। मैंने आपको बाउंडेडनेस की परिभाषा बताई हुई है, उसमें नॉर्म टी एक्स लेस देन इक्वल टू के नॉर्म एक्स, और हम उस के को बाउंड कहते हैं। तो यहाँ पर बाउंड क्या आ गया, 1 आ गया। तो और यदि टी बाउंडेड है तो टी कंटिन्यूस भी होगा, आपको थ्योरम इससे पहले कराई हुई है वो। दस टी इज कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगेन स्मॉल m यदि m का एलिमेंट है तो स्मॉल m n का एलिमेंट आएगा, और जो हमने t ऊपर जो डिफाइन किया हुआ है n से n बाई m में, तो उधर हमारा ये t के साथ जो हमने x लिया है, तो x n का मेंबर था, तो यहाँ पर स्मॉल m भी n का मेंबर है। और उधर हमने x प्लस m कहा था, तो यहाँ पर स्मॉल m प्लस कैपिटल M एज स्मॉल m बिलोंग्स टू n। और आपको एक ग्रुप में थ्योरम कराई थी मैंने कई बार कि एच एच इक्वल टू एच इम्प्लाइज एच बिलोंग्स टू एच। तो यहाँ पर भी एज m इज सब स्पेस ऑफ n, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इक्वल टू m इफ एंड ओनली इफ स्मॉल m बिलोंग्स टू कैपिटल M। तो यहाँ पर हमने जो Tm इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M लिया है, और दिस m ये कैपिटल M का मेंबर है, सो दिस इज इक्वल टू m, और दिस m इज zero element of n by m, so we can write it 0. This zero vector m of n by m, मतलब हम m को जिस तरह से हम अगर हम n की बात करते हैं तो n में कहते हैं कि इसका जीरो वेक्टर जीरो ही है, लेकिन जब हम n by m की बात करते हैं तो n by m का एलिमेंट कौन हुआ, x प्लस m, और x n का एलिमेंट है, तो n का जो जीरो एलिमेंट है वो जीरो है, तो हमारा ये n बाई m का जीरो एलिमेंट वो m होगा। सो वी कैन राइट Tm इक्वल टू जीरो। ऑल्सो सिंस x नॉट बिलोंग्स टू m, वी हैव tx नॉट इक्वल टू x नॉट प्लस m, और x नॉट m का एलिमेंट नहीं है, तो x नॉट प्लस m दिस इज नॉट इक्वल टू m, या ये कहिए कि जीरो एलिमेंट ऑफ n बाई m। सो हमारा ये tx नॉट इक्वल टू जीरो, tx नॉट इक्वल टू जीरो। अदरवाइज अगर हम ये जीरो के बराबर कर देंगे इसको, तो इसका मतलब क्या हो गया कि tx नॉट बराबर x नॉट प्लस m बराबर m, मतलब ये हो गया। और उस केस में हमारा क्या हो गया कि x नॉट m का मेंबर हो गया, इसलिए वो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम इसको नॉट इक्वल टू जीरो लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि tx नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज नॉन जीरो एलिमेंट, tx नॉट दैट इज x नॉट प्लस m, tx नॉट किसके बराबर है, x नॉट प्लस m इज नॉन जीरो वेक्टर इन n बाई m। देयरफॉर हमारी जो प्रीवियस थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट ए फंक्शनल f इन n बाई m। उधर हमने f इन n स्टार कहा, लेकिन वहां पर f इन n स्टार उधर कहा हमने, उधर जो वेक्टर जो था x उस n का एलिमेंट था जो नॉन जीरो वेक्टर था। यहाँ पर ये वेक्टर जो है वो n बाई m का एलिमेंट है, तो एक फंक्शनल f किसमें एग्जिस्ट करेगा, n बाई m स्टार में, सच दैट f x नॉट प्लस m इक्वल टू नॉर्म x नॉट प्लस m नॉट इक्वल टू जीरो एज x नॉट प्लस m नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर।
क्योंकि ये जीरो नहीं है, एक्स नॉट प्लस एम हमारा जीरो वेक्टर नहीं है, तो उसका जो नॉर्म है वो भी जीरो नहीं है। नॉर्म इज ए रियल नंबर। तो अगर हमारा ये वेक्टर अंदर हमारा ये कुछ भी है, नॉर्म एक्स, हम हमारा कहते हैं नॉर्म एक्स इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू जीरो। हमारा नॉर्म की परिभाषा में क्या आया था, नॉर्म एक्स इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू जीरो। हेयर एक्स नॉट प्लस एम इज नॉट जीरो। हम उधर जो नॉर्म की परिभाषा में कहते हैं एक्स, नॉर्म एक्स बराबर जीरो, दिस जीरो इज रियल नंबर। इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू जीरो, दिस जीरो इज वेक्टर, not real number. N be a norm linear space and x naught not equal to 0 belongs to n, then there exists a functional f naught in n star such that so and. So हमने इस थ्योरम का यहाँ पर यूज किया है, और यूज करने पर हमने ये कह दिया कि f x naught plus m equal to this, this is not equal to 0. We now define f naught by f naught x इक्वल टू एफ ऑफ टी एक्स, मतलब कि हमने कंपोजिट मैपिंग का यूज किया है कि एफ और टी का जो कंपोजिट मैपिंग है वो हमारा एफ नॉट है। देन एफ नॉट इज लीनियर। अगर हम वैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर एफ और टी दोनों लीनियर हैं तो हमारा एफ नॉट तो लीनियर होगा ही विद द डिजायर्ड प्रॉपर्टी। फिर भी हम इसको यहाँ प्रूव करके बता रहे हैं आपको कि एफ नॉट इज लीनियर। देख लीजिए आप, एफ नॉट अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू एफ ऑफ टी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस एम, क्योंकि हमारी टी की परिभाषा है। टी एक्स इक्वल टू हमने क्या माना, एक्स प्लस एम माना है। और इसको चूंकि एन बाई एम हमारा जो क्वोशिएंट स्पेस है वो वेक्टर स्पेस होता है, एंड बाई विद द पॉइंट वाइज ऑपरेशन जो उसमें दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग, तो हमने यहाँ पर इनको इस हिसाब से ब्रेकआउट कर लिया। और चूंकि एफ हमारा फंक्शनल है तो एफ ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, एफ हमारा जो दिया हुआ है हमने फंक्शन किससे किस में माना है, एफ हमने एफ एफ आप देखें ऊपर आपने माना है एफ आपने ये देखिए देयर एग्जिस्ट फंक्शनल इन एफ इन एन बाई एम स्टार। मतलब क्या हुआ कि एन बाई एम हमारा क्या है, कॉन्जुगेट स्पेस ऑफ एन बाई एम, मतलब एफ इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन बाई एम टू आर, कंटीन्यूअस और बाउंड्री लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन बाई एम टू आर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एफ के साथ जो एलिमेंट लगेगा वो एन बाई एम का एलिमेंट लगेगा। तो आप देख रहे हैं कि एफ ऑफ अल्फा एक्स प्लस एम, तो एक्स प्लस एम ये एन बाई एम का एलिमेंट है, वाई प्लस एम जो एन बाई एम का एलिमेंट है। तो एफ तो दिस ये अंदर जो एलिमेंट है दीज आर एन बाई एम के एलिमेंट है, क्योंकि एफ इज कंटिन्यूअस और बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम n by m to r or c. So this is equal to now f of, चूंकि हमारे tx इक्वल टू एक्स प्लस एम है t की परिभाषा से, और ty इक्वल टू y प्लस एम t की परिभाषा से, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एफ नॉट दिस इज अल्फा एफ नॉट एक्स प्लस बीटा एफ नॉट एज एफ इज लीनियर ऑन n by m. सो यदि हम ये इस तरह से हम फंक्शंस के बारे में हम जानकारी लेकर के चलेंगे और गलती नहीं करेंगे तो हमारी थ्योरम गलत नहीं होगी, हमको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यदि हम केवल रट के हम इसको करेंगे तो गलती 100% होगी। इसमें कोई हमने नया नहीं किया है, सारी परिभाषाएं हमने क्वोशिएंट स्पेस, किसी बच्चे को क्वोशिएंट स्पेस पता नहीं, क्वोशिएंट ग्रुप, क्वोशिएंट स्पेस, क्वोशिएंट ग्रुप, ये सब एक ही तरह से। एफ नॉट इज बाउंडेड मॉडुलस एफ नॉट एक्स इक्वल टू एफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू, अब आपको मैंने बताया हुआ है जब भी कि मॉडुलस एफ एक्स लेस देन इक्वल टू नॉर्म एफ नॉर्म एक्स, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ये कर लिया। और इसको हम नॉर्म टी एक्स लेस देन इक्वल टू नॉर्म टी नॉर्म एक्स, ये भी आपको बताया हुआ है। और चूंकि नॉर्म टी लेस देन इक्वल टू 1 होता है, एक थ्योरम जो अभी आपको हमने नहीं करा, इसका स्टेटमेंट आपके सामने है, बताएंगे इस थ्योरम को। M be a closed linear subspace of a norm linear space n and let T be a natural mapping of n onto n by m defined by Tx equal to x by m। ये आप लेके चले हैं। T is continuous, ये भी आपने ऊपर बताया हुआ है, और बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर विच नॉर्म T लेस देन इक्वल टू 1। सो इसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि नॉर्म T लेस देन इक्वल टू 1 सिंस f इज बाउंडेड
being a functional, it follows from the above inequality that f naught is bounded. f बाउंडेड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये f नॉट है, ये भी हमारा बाउंडेड होगा. thus f naught is functional on n, that is f naught belongs to n star. Further, if small m belongs to capital M, then f naught m equal to f tm और tm बराबर जीरो, ये हम ऊपर बता चुके हैं इक्वेशन नंबर 1 में. सो दिस इज f0 और f0 हमारा जीरो होता है. f0 हमारा जीरो होता है. सो f naught m इक्वल टू जीरो एंड f naught x naught इक्वल टू f t x naught इक्वल टू f x naught प्लस m नॉट इक्वल टू जीरो बाई इक्वेशन 2. और ये थ्योरम हमने अभी 1 2 3 जो आपको बताए हैं, ये हमारे आगे कई थ्योरम्स में काम आते हैं इनका स्टेटमेंट प्रूफ के तौर पे, इसलिए आप इनको याद करके चलें.